Today, 12th of May 2023, the International Nurses Day was celebrated in the Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery at RIMS Ranchi, and everyone has congratulated all the sisters working in the hospital for the landmark change they have brought to the healthcare. And this day was not only celebrated in this hospital, it was celebrated simultaneously in all the parts of the world where the nurses are giving the services to the mankind. Health Minister Vanna Gupta ji also came and facilitated the services of the sisters and also appreciated the work done by them for years together. So a lot of celebrations were in the various parts of the hospital by the nurses, and we in our department, cardiothoracic department, has celebrated this day in a big way. So morning the function was started in the main auditorium of the hospital, and later on our department, CTVS department, has celebrated in their own way, followed by a cake cutting and a small lunch for everyone. It is celebrated throughout the world in the glory of Nightingale, who has given unconditional services to the wounded soldiers in the war, and used to carry the lamp in the late evening and the night and search for the wounded people and gave the first aid to those people. So she has brought the concept of nursing to the whole world and made the profession of nursing at an international form. So first school was started by her in St. Thomas Hospital in London, and after that so many schools and colleges of nurses are running in the various places of the world, and nurses today has become an established profession and a very respectable job, and we are facilitating them on this day for their contribution to the society. So all the days in the hospital should belong to nurses only, but today is their special day, which is celebrated throughout the world today, 12th of May, in the glory of this woman, Nightingale Florence. She was the sister who was having the feeling of mother and sister both, which she has given his unconditional services during the World War and gone to the fields with this lamp. That is why this is known as Lady with a Lamp. She has gone in the night with this lamp and searched all the wounded people and given care to them when the World War was going on. This is in St. Thomas Hospital, London. So when a man is born as a child, the first presence sister is there, and when man dies also, the last one to see is the sister only. So at the beginning of his death, at the beginning of his life, when he is born and when he dies, sister or a nurse is a thing which is only witnessed. So we all congratulate all the sisters. They are the backbone of the institutions. The institution is not run by the doctor, it is being run by the students. Thank you very much. इम्पोर्टेंट बात तो बोले ही, बहुत अच्छी बात बोले सिस्टर कि इट्स नॉट बाय द डॉक्टर बट बाय द सिस्टर्स। किसी भी डॉक्टर के पास एक अलमीरा भी अपना नहीं है। हम लोग सब हर फ्लोर पे जाते हैं, तो ये सिस्टर ही मालिक होती है सही तरह से। अब तो कम, लेकिन लाइफ में बहुत बार ड्यूटी करते समय बहुत लोगों का पर्सन निकाले, बहुत लोगों का कंकड़ हम लोग निकाले, लेकिन जो सिस्टर थी, जो डॉक्टर थे, कभी आज तक कोई कंप्लेंट नहीं दिया कि मेरा सामान का है। डॉक्टर का, सिस्टर का कभी कभी हम लोग फ्रस्ट्रेशन में बोल देते हैं कि बैंक जाइएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में होता है। हमारा काम ही अलग है, हम लोग सर्विस कभी किया है इरिस्पेक्टिव। जो हम लोग काम पे आते हैं तो जो है सो हमारा कोई किसी और से कंपैरिजन भी नहीं है। हम लोग बैंक में काम नहीं करते हैं, किसी का पैसा जमा किए उसी का पैसा, हम लोग का काम ही अलग है, और हम लोग सब लोग इस डेकोरम को मेंटेन करते हैं। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कोई जान पहचान का भी आदमी आता है फ्री ब्लड दिखाने के लिए, तो हम लोग लिखने से पहले 3 बार समझ बोलते हैं ब्लड बैंक में ब्लड दीजिए, लेकिन कोई
अननोन लड़का आ गया, यंग ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई लाइफ सेविंग है, कोई बाहर का आदमी है, एड्रेस देख के हम लोग पकड़ते हैं बाहर का आदमी है, उसको लिखने में हम लोग कभी नहीं पूछते हैं इस तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो हम लोग कैसे जानते हैं? सिस्टर आके बताती है, हम लोग बताते हैं कि ये जो अननोन है, ये इसका ये चीज़ है। आप लोग विश्वास नहीं कीजिए, ये डेथ जो है ना, कितना बार तो ऐसा हुआ सिस्टर की पर्स निकाल के उसी के पैसे से दवा मंगाया है, जो बचा है वही पर्स हैंड ओवर किए। तो ये मतलब से कोई बोलना से बड़े हैं, और ये सर्विस हमको खुद इसके बहुत ही ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा सर्विस है। और टीवी जाती है, सिस्टर प्रसिद्धा है, इंडिया है, सब लोग जो हैं तो यंगस्टर्स के लिए खास करके, बाकी लोग भी सब लोग हैं, लेकिन नाम में एक दो ही को आ जा सकता है, इसलिए सब लोग आप लोग इन लोगों को फॉलो कीजिए, इन लोगों को ये कीजिए, यही हम लोग ये थैंक यू। फोटो को अगर कोई समझा होगा तो इसको ध्यान से देखिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिस्टर, ये देखिए, ये सब लोग हैं जो वार में वुंड हुआ है, ठीक है। और ये लेडी नाइटिंगेल ये लैंप लेके, ये वाला लैंप, उसमें मिट्टी का तेल डाल के लैंप लगा के फील्ड्स में जा के देखना है, कोई गिरा पड़ा, कोई कुछ हुआ, उसको देखकर किसको चोट आई है, ठीक किया। देखो ये 1965 it was declared as Florence Nightingale, and today in 2023 we should adopt the principles by Nightingale, and the pictures show that ऐसे ही होता है तो बात नहीं। बोलो सर, प्लीज आपका संदीप माला सही कर। क्योंकि हम लोग जब से नर्सिंग में आए हैं, एवरी ईयर हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल डे को मनाते हैं नर्सिंग डे के तौर पर, लेकिन हम लोग इस बार में आज तो पहली बार इतना बड़ी हम तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम बहनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के सुंदर को खासपुरा में हम याद करते हुए कम से कम हम लोग निस्वार्थ भाव से जितना भी मरीज आएंगे उनको हम लोग निस्वार्थ भाव से वाले चोट लगते हुए भी हम लोग ये करेंगे। मेरी तरफ से यही दुआ रहेगी जो भी हम लोग के सामने आता है, जैसे इससे हम लोग सीख लेते हैं कि ये तो नाइट रात के समय कहीं गाँव में फील्ड में कहीं भी जाता कोई सेवा देता है, उसके फंक्शनों पर चलते हुए हम लोग हर मरीज को जितने भी मरीज आते हैं हम लोग के सामने सिस्टर आप लोग फूल चढ़ा दीजिए, अब ले लीजिए। आइए सिस्टर, ठीक है। फोटो बनवाए हैं बहुत बढ़िया। सबको बुला, ये लोग सभी लोग सब लोग एक साथ। Kila kukicha unamboza mimba we, shausa unasunza ujana, ujinga wako utakukosti, tasika kundi bulewe, unaenza
mashuga dadiwe mafulani siponsa unanyenza shabulebule undaharisha tuliza boli tafuta kazi ya kuenda takala kudengeresha Victoria mulungu wandaribariki jashoro uwe musana richa ukahenda kazi we richa ukahenda kazi richa ukahenda kazi we richa ukahenda kazi nzagamba ya kilume pepezele richa ukahenda kazi अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का मौका है, ऐसे में मैं मौजूद हूँ रांची के रिम्स अस्पताल में, जो कि सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल कहा जाता है। और आज यहाँ इटली में नर्सों के आंदोलन की नायिका फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सम्मान दिया जा रहा है। उनकी याद में लोग खुशियाँ भी मना रहे हैं और कहीं न कहीं नाइटिंगेल को याद किया जा रहा है। हमारे साथ जो नर्सें हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके सम्मान में हमारे साथ प्रोफेसर हेड जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उनसे बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। सर बात करेंगे जो नायिका रही फ्लोरेंस नाइटिंगेल इटली से रही, लेकिन आज पूरी दुनिया नर्सों के दायित्वों को इनके कर्तव्य याद करता है। आज के दिन इस अवसर पर क्या करेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो अपनी सर्विसेज दी, तो ये एक लैंप लेके रात को जहाँ पे वर्ल्ड वार हो रही होती थी वहाँ पे जाके जिन लोगों को जख्म आया है वार के दौरान, युद्ध के दौरान जो जख्म आया है उनको ढूंढ के रात के टाइम, दैट इज वाई इसको लेडी विद द लैंप बोला जाता है। आप ये देखिए इनके हाथ में लैंप है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये लैंप लेके पूरे जगह पे अंधेरे में मरीजों को, कोई झाड़ी के पीछे है, कोई किसी जगह पे बैठा है, वहाँ से ढूंढ के उनका इलाज करती थी। तो जो ये श्रद्धा इनके मन में है, उसी श्रद्धा के ऊपर विश्व भर में नर्सिस को माना गया है कि उन्हीं का काम है मरीज को ठीक करना। डॉक्टर तो 2 मिनट के लिए आता है, इंस्ट्रक्शन दे के दवाई दे के चला जाता है, लेकिन उसको दवाई को प्रॉपर वे में देना और उसकी वोंड जो उसका जख्म है उसकी पट्टी करनी है, वो सारा काम नर्सिस है। हॉस्पिटल जो होते हैं डॉक्टरों से नहीं चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं नर्सिस। एक डॉक्टर और 50 नर्सिस एक हॉस्पिटल चलाने। अब बिना नर्स की योगदान से कोई भी किसी भी किस्म का हेल्थ केयर सेक्टर पॉसिबल नहीं है। मैडम ने, फ्लोरेंस मैडम ने सेंट थॉमस लंदन में नर्सिंग का स्कूल खोला था, तो इन्हीं की सम्मान में आज का दिन मनाया जा रहा है। ये सब नर्सिंग हैं, ये आपको बताएंगी इनके बारे में मेरे से ज़्यादा। आज इन्हीं का दिन हाथ में लालटेन लेकर एक स्वास्थ्य के प्रति रोशनी का अलग आपके दायित्व को भी तरह से निभा रही है। जिस माहौल में आप लोगों ने आज उस हिसाब से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? नर्सिंग ज़्यादा सही कहा, नर्स के बिना हॉस्पिटल चलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा ही नहीं, क्योंकि सर अगर ऑपरेशन करते हैं उसको केयर के लिए सिर्फ और सिर्फ नर्सें होती हैं। बहुत बड़ा झारखंड में नर्सिंग कॉलेज की बातें भी होती रही, क्या नर्सों को अब तक वो उपाधि को सम्मान मिल पाया है, या फिर आगे इसी तरह से आप लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं? आगे तो हम लोग लड़ते ही रहेंगे, पूरा मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो सम्मान मिला नहीं है, जितना जो नर्सेस को मिलना चाहिए उतना सम्मान तो मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल का नाम है उज्ज्वल जी और फ्लोरेंस मैडम भी उज्ज्वल कर रही है, रोशनी कर रही है। महान दायित्व रखने वाला, मतलब महान महिला को, महान नर्स को लेकर आप लोग भी नर्स अपने कर्तव्यों को किस तरह से देखते हैं, भविष्य में कैसे मरीजों की सेवा करेंगे? हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में हैं तो हम लोग चाहेंगे कि जितने भी कमज़ोर हैं, लाचार हैं, और मतलब हम लोग का जो दायित्व है हम लोग सेवा भाव से पूरा करें। लगता है कि कुछ आवश्यकताओं की जरूरत है और कुछ कमियाँ है यहाँ अभी अस्पताल में, उनसे भी करनी। हाँ, यहाँ की जरूरत है, यहाँ स्टाफ की भी बहुत कमी है, तो मतलब स्टाफ थोड़ा ज़्यादा रहे, तो जैसे हम लोग ICU में रहते हैं तो स्टाफ ज़्यादा रहे तो हम लोग मरीज को ज़्यादा समय कभी ऐसा मौका मिला कि कमियाँ नजर आई, आप लोगों को भी मन में लगा कि कमियाँ हैं, आप लोग भी हाथ में लाते हैं अच्छी दाग लेकर कोई खास मरीजों के भी सामने? नर्स स्वास्थ्य सेवाओं की धड़कन मानी जाती हैं और उन्हीं नर्सों को याद करने का आज दिन है। दरअसल आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है और इस मौके पर
रिम्स के CTBS विभाग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जो नर्सें हैं दिन भर मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। कहा जाता है कि यह जो नर्स हैं वो मरीजों की सेवा एक माँ की तरह, एक बहन की तरह लगातार करती रहती हैं। रिम्स के CTBS विभाग के HOD हैं और इस कार्यक्रम के आयोजन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर बात करें तो कई सारे लोग हैं जिन्हें शायद पता भी नहीं है कि इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान था, और शायद यही कारण है कि आज इनके याद में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। दुनिया में ये समझा जाता है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको डॉक्टर चलाते हैं, बट ये गलत चीज़ है। डॉक्टर हॉस्पिटल को नहीं चलाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल को चलाने में एक अपना साइंटिफिक योगदान देते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हॉस्पिटल चलाती है नर्स। तो नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जब लोगों को वार के टाइम पे इंजरी हुई, जख्म हुआ, तो वो मैदान के बीच में गिर गया। कोई पेड़ के नीचे गिरा है, कोई किसी खड्डे के नीचे गिरा हुआ है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिस्टर ने, नर्स थी, उस टाइम पे नर्स का प्रोफेशन जो था वो लोगों को मालूम नहीं था। तो इन्होंने हाथ में लैंप लेके, क्योंकि रात को अंधेरा था वहाँ पे, तो इन्होंने लैंप लेके सब जगहों में लोगों को ढूंढा। जिसको किसी को चोट आई है या किसी के हाथ को इंजरी है, किसी के सर से खून बह रहा है, उसको उठा के उसको जख्म को ठीक करके उसको पट्टी किया। इसीलिए इसको बोला जाता है द लेडी विद द लैंप, ये औरत लैंप के साथ। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब मरीज हैं जो वर्ल्ड वार में एक, उस टाइम पे इस अस्पताल में होते थे। तो इन्हीं से प्रेरित होते हुए एक नर्सिंग प्रोफेशन बना, जो पहले प्रोफेशन नहीं था। इन्होंने अपना पहला स्कूल सेंट थॉमस लंदन हॉस्पिटल में चालू किया, फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। अब तो दुनिया में हर जगह पे, अब तो मेरे को लगता है रांची शहर में ही, झारखंड में ही 50 स्कूल हैं, लेकिन ये तब की बात है। तो मेरे हिंदुस्तान में 1960-65 के बाद ये रिकग्नाइज हुआ कि आज का दिन 12 मई पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में वर्ल्ड नर्सिस डे। देखा जाए तो सारे दिन इन्हीं के हैं, लेकिन आज के दिन में इनके लिए स्पेशल हम सम्मान करते हैं। लेकिन इनकी सर्विसेज के बिना कोई भी हॉस्पिटल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नर्सें हैं वो किसी भी अस्पताल की रीढ़ मानी जाती हैं, और इन नर्सों के बगैर फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी फीमेल थी जिसने वर्ल्ड वार 2 के टाइम जो भी लोगों को इंजरी हुई, जो भी लोगों को युद्ध के दौरान पे चोट आई, उनको फील्ड में जाके, जहाँ पे सही में वार चल रहा था, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ से, निस्वार्थ भाव से लोगों को जाके सेवा की। और वो रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब अंधेरा हो जाता था, उस टाइम पे जब सुबह के टाइम पे दोपहर में युद्ध चल रहा होता था, जब शाम हो जाती थी, तो वो हाथ में एक लैंप पकड़ के, मिट्टी के तेल का एक लैंप लेके शाम के टाइम पे जाके जो लोग जख्मी होते थे उनको सेवाएं देती थी, उनको मरहम पट्टी करती थी, इंजेक्शन देती थी, उनके जख्मों को ठीक करती थी। इसीलिए उसको बोला जाता है ए लेडी विद द लैंप। वो एक ऐसी लेडी थी जो लैंप के साथ चली। उसका एक दूसरा नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जिसको आसान भाषा में बोला जाता है ए लेडी विद द लैंप। उसके बाद नर्सिंग का प्रोफेशन जो है वो सामने आया, और उन्होंने पहला स्कूल सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में चालू किया, स्कूल ऑफ नर्सिंग। उसके बाद इतने स्कूल बने नर्सिंग में, पूरे झारखंड में, रांची में 10-20 स्कूल में को लगता है। तो उसके कारण जो नर्सिस प्रोफेशन का उनको एक अपना एक स्थान मिला, और आज के डेट में जो भी नर्सिस हैं वो हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और हॉस्पिटल अगर सही मायने में देखा जाए तो नर्सिस ही चलाती है। झारखंड में जिस तरह से नर्सों का दायित्व होता है, दिन रात एक मेहनत तो करती है, लेकिन अब भी कई नर्सें ऐसी है और जिन्हें सही उनका जो मानदेय होता है वो भी नहीं मिलता, सही वेतन भी नहीं मिलता, कई तरह की समस्याएं से ये जूझती है। नर्स के अंदर तो सिर्फ सेवा का भावना है, वो अपने मन धन तन से सेवा कर रही हैं, बट जो आप बोल रहे हैं वेतन नहीं मिलता, जब उनको पूरे पर्क्स नहीं मिले जा रहे हैं, या सैलरी नहीं मिलती, या उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, वो झारखंड सरकार देख रही है। और स्वास्थ्य मंत्रालय और झारखंड सरकार इसको हर टाइम पे, जैसे हमारा GP अभी हुआ, उनकी बेहतर होने की कंडीशन के लिए जो भी अच्छे स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं।
ऑक्सीडेटिव डिसीज होते हैं ये अपने आप ठीक हो जाती है, बट उनके अंदर निस्वार्थ भाव से काम करने की ताकत जो पहले थी वो आज भी है, चाहे उनको उनकी डिमांड पूरी हो या ना हो, उनका मन और श्रद्धा एक ही जैसी है। और यही भाव है जिसके ऊपर हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दिन मनाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ जो आपके बारे में जो उनके बीच में थोड़ी सी नाराजगी होगी, वो वक्त के हिसाब से सरकार और प्रशासन मिलकर उसको ठीक करेगा, और उम्मीद है सब कुछ होता है। और हमारी तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, और जो जनता है जो इलाज करने के लिए यहाँ पे आती है, उनका जो मन भावना नर्सों के लिए एक माँ और बहन की तरह ही है, इससे बड़ी बात होती है। या बन्ना गुप्ता साहब आए थे, उन्होंने ऑडिटोरियम में नर्सेस का यही सेम प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया और सभी को कंग्रेचुलेट किया। उनका भी यही मानना है, ये बन्ना गुप्ता जी कहते हैं ये हमारी बहनें हैं, ये हमारी माताएं हैं, और इनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, और जो जो फैसले उन्होंने जीबी मीटिंग में लिए हैं उनको पूरा अमल किया जाएगा, और वो हर प्रकार से डॉक्टरों की और नर्सों की जितनी मदद हो सके हैं वो करते हैं। ये हमने टाइम टू टाइम देखा। प्राइवेट प्रैक्टिस जो चल रहा है ये काम एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का है, जो अपनी तरफ से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसको देखेंगे और अच्छा करेंगे। कि नॉन प्रैक्टिसिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे को NPA मिलता है प्रैक्टिस ना करने के लिए, बट इस चीज़ को कंट्रोल करना या स्टॉप करना ये काम सरकार और डॉक्टर्स लोग तो सबका इलाज करते हैं, अच्छा काम है, लेकिन हर कोई टैक्स देता है, टैक्स तो देता है, लेकिन जो फीस ली जाती है उसका कोई बिल नहीं मिलता है। होना चाहिए कि उनको भी बिल देना चाहिए। यूजुअली आप किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जाते हैं, उसमें आपने जो भी मेडिकल सर्विसेज ली होती हैं, मेडिसिन ली होती हैं, ऑपरेशन है, उसका बिल, उसका पूरा बाकायदा बिल GST के साथ मिलता है। लेकिन अब किसी किस्म की दुकान है, किसी किस्म की क्लिनिक है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। आप बड़े से हॉस्पिटल में जाओगे, प्राइवेट में, कॉर्पोरेट में, आपको GST के हिसाब से बिल मिलेगा। बाकी सरकारी हॉस्पिटल में हमारे पास ऐसी कोई सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। हम 5 रुपये की पर्ची में, आयुष्मान स्कीम में टोटली फ्री ऑफ काम करते हैं, और हमारी जो सैलरी है वो सरकार की तरफ से हमारे अकाउंट में टैक्स काटने के बाद हमारे को वाइट मनी की शेप में मिलती है। इसके अलावा सरकारी डॉक्टर किसी भी किस्म की आमदनी इस हॉस्पिटल में नहीं है, बट कोई अगर डॉक्टर प्राइवेट लेवल पे क्लिनिक में काम कर रहा है, उसकी ये फर्ज बनता है कि उसने जो भी किसी मरीज से फी की शेप में चार्ज किया है या सर्जरी की शेप में चार्ज किया, उसका उसको प्रॉपर बिल दिया जाए, सो दैट वो आगे क्लेम कर सके या अपने अकाउंटेंट को दिखा सके। उनकी अस्पताल और डॉक्टर जो फीस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो बिल देना चाहिए, नहीं तो राजस्व का जो सरकार जो पैसा है टैक्स की चोरी तो कर रहे हैं, ऐसे लोगों का। अब इसमें मेरा कोई कहने का मतलब नहीं बन रहा है, ये तो टैक्स की चोरी डॉक्टर ही क्यों, तो हर एक आदमी हर लेवल पे किया जा रहा है, दुकानदार भी कर रहा है, ज्वेलर भी कर रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं, जो हर एक इंसान टैक्स का। ये तो हमारे हिंदुस्तान में जितना भी है देखिए 10 से 20% जो है जो प्रॉपर टैक्स को टाइम टू टाइम पे करते हैं, बाकी तो सब जगह पे ये प्रॉब्लम है ही है। इसीलिए मोदी सरकार ने सारी की सारी चीज़ों को डिजिटलाइज करने की कोशिश की। आप देखिए 4-5-6 साल पहले कोई ऐसी आज की डेट में 2000 का नोट मैंने पिछले 2 सालों से 3 सालों से देखा ही नहीं है, और आज की डेट में आप मेरे को पूछोगे आपकी जेब में कितना पैसा है, एक रुपया का नहीं है। तो मैं पिछले 2 साल से जेब में कोई पैसा नहीं रखता हूँ, सब कुछ डिजिटल ट्रांसफर होता है, आप जाइए पेटीएम में स्कैन करके सब कुछ। और आजकल हमारे पास वो अवेलेबल मनी ही नहीं है, और जिस तरीके से चल रहा है ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5-6 साल के बाद जो ओरिजिनल करेंसी का नोट है वो खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। तो डिजिटलाइज हो जाएगा तो टैक्स भी ठीक होगा, और आने वाले टाइम पे और चीज़ें ट्रांसपेरेंट और वाइट हो जाएंगी, ब्लैक मनी की गुंजाइश कम हो जाएगी। बट इसका सही जवाब आपको एक डॉक्टर नहीं दे सकता, ये दूसरे अकाउंटेंट और वो लोग हैं, उनको ज़्यादा समझ है, हमारे को इसके बारे में ज़्यादा तो सरकार का काम है, और इसके लिए डिफरेंट विभाग बने हुए हैं जिनका काम है। एज ए डॉक्टर मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं दे सकता, जो मेरे को समझ में आया मैंने आपको बता दिया।
और हर एक जो सिटीजन होता है उसका ये फर्ज बनता है कि प्रॉपर टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाए, सो दैट उसी टैक्स से गवर्नमेंट सिविलियंस के लिए फ्लाईओवर, सड़कें, पानी, सब चीज़ों का इंतजाम किया जाए। एक्चुअली हम अपनी ज़िंदगी काटने के लिए, एक बेहतर सर्विस के लिए हम एक पैसा देते हैं और उसी पैसे से सरकार योजनाएं बनाती है और वही लोगों के खर्च हुआ होता है। ये मतलब होता है टैक्स। ठीक है। We are thankful to all the nurses of this hospital and all other hospitals in the world who are doing their services unconditional day and night. God bless you and have a nice day and enjoy life. Thank you very much. Vilungo kwezele,